today we are going to do EVS chapter 13 going to school. आज हम लोग EVS chapter 13 करेंगे going to school. ओके आप सभी अपना अपना किताब निकाल लो. All of you take out your books, EVS books. Now see what we will learn here. What we are going to learn here. So here what we are going to learn, we will learn about the different ways of reaching school. हम लोग स्कूल पहुंचते हैं ना, तुम लोग कैसे आते हो? स्कूल आते हो बस से, राइट? कोई आता है साइकिल से, कोई आता है स्कूटर से, किसी के मम्मी पापा छोड़ देते हैं, कोई वॉकिंग करके आते हैं. तो these are the different ways of reaching school. Then in this chapter we also going to read about different local transport used for reaching school. So बताओ तो what are the different local transport which you used to come to school? You come to school माने क्या क्या different transport है जिससे तुम लोग स्कूल आते हो? Buses, then scooter, bikes, then car, cycles. ये है different type of transport by which you come to school. Now we are also going to learn about the advantages of going to school. स्कूल में आने से हमें क्या एडवांटेजेस यानी क्या लाभ मिलता है वो भी हम लोग देखेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So let's start the chapter going to school. Okay, now let's move ahead. देखो इस पिक्चर में तुम देख सकते हो, देखो ये है, मैं नंबर दे देता हूं. दिस इज पिक्चर नंबर 1. ओके, ये है पिक्चर नंबर 2. ओके, एंड दिस इज पिक्चर नंबर 3. ठीक है, दिस इज पिक्चर नंबर 1, दिस इज पिक्चर नंबर 2, दिस इज पिक्चर नंबर 3. अंडरस्टूड? अब देखो इन पिक्चर नंबर 1 what we can see how they are coming to school. In picture number 1 they are coming to school by walking. Can you see these two boy and girl? They are holding hands, brother and sister. They are holding each other's hand and they are walking to school in picture number 1. Now come to picture number 2. How this girl is coming to school? This girl is coming to school by riding her bicycle. इन पिक्चर 1 में हम लोगों ने क्या देखा? ये दो भाई बहन जो है, ये लड़के और लड़की हाथ पकड़कर चलकर आ रहे हैं स्कूल. कैसे आ रहे हैं स्कूल? चलकर, वॉकिंग. और पिक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या देखा? दिस गर्ल इज राइडिंग अ बाइसाइकिल एंड कमिंग टू स्कूल. एंड सी दिस पिक्चर नंबर 3. पिक्चर नंबर 3 में बच्चे स्कूल बस से आ रहे हैं. इन पिक्चर नंबर 3 स्टूडेंट्स आर कमिंग बाय स्कूल बस. आप लोग भी, many students are there who come to school after opening the school. You will be also having bus, right? We have also Creative Mind International School bus we have. You also, most of the students come to school by school bus, right? So these are the different ways how students come to school. Okay, I hope you have understood this part. Now let's move ahead. आगे बढ़ते हैं. Now see, now we are reaching school. अब हम लोग किस हिस्से में हैं? In which part? Reaching school. Now see, I'm going to read out this chapter for you. I hope all of you have also kept your book open in front of you. आप लोगों ने भी chapter 13 EVS अपने सामने खोल कर रखा होगा किताब. Now see, every year
every year we start a new session in school. तो हम लोग हर साल नया सेशन स्टार्ट करते हैं, तो मार्च अप्रैल में। इस साल तो लॉकडाउन हो गया, आप लोग जानते हैं, वी ड्यू टू कोविड-19 मोस्ट ऑफ द schools are, most क्या all the schools are closed, lockdown is there, now slowly slowly is opening up। तो हम लोग का भी नया सेशन अप्रैल मई में चालू होगा इस बार। ओके, सो एवरी ईयर वी स्टार्ट अ न्यू सेशन इन स्कूल। इसका क्या मतलब है, व्हाट इट मीन न्यू सेशन? दिस मीन्स बाइंग न्यू बुक्स एंड स्टेशनरी। हर साल जब भी नया सेशन चालू होता है, हम लोग नए किताब और स्टेशनरी खरीदते हैं हर साल, because we are promoted to new class, and after going to promoted we get a new dress, new copies, new books. क्योंकि now you will be promoted this year to class 5, so at that time you will be not be using the old books and copies। अब इस साल आप लोग नया सेशन जो होगा, आप सभी क्लास 5 में जाएंगे, तो उस समय तो क्लास 4 का ओल्ड डायरी, क्लास 4 का किताब, क्लास 4 का कॉपीज, वो सब तो नहीं चलेगा। नए सेशन में नए कॉपीज और बुक्स यूज होंगे। सो वी मीट न्यू टीचर्स एंड फ्रेंड्स इन द क्लास। हाँ, जैसे ही आप लोग क्लास बदलते हैं, क्लास टीचर बदल जाता है, नए क्लास टीचर आ जाते हैं, राइट। जैसे लास्ट ईयर तुम लोग क्लास 3 में थे, आप लोगों का क्लास टीचर कौन था? तूफान सर। और अभी यू ऑल आर बीइंग प्रोमोटेड टू क्लास 4, और अब तुम लोग का न्यू टीचर कौन है? सुशील सर। मैं भी अगले साल अगर फिर से मैं क्लास 5 का टीचर रहूं, तो तुम लोग फिर मेरे क्लास में आओगे। ओके, तो इस तरीके से जब नया सेशन चेंज होता है, तो बच्चों को नया बुक मिलता, नया कॉपीज मिलता है, नए क्लास मिलते हैं, यहाँ तक कि नए क्लास टीचर्स भी मिलते हैं। और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं जो अगले क्लास में, तो तुम जाते हो तो तुमको नए बच्चे भी मिलते हैं, और कुछ बच्चे नए एडमिशन होते हैं उस साल, तो तुम लोगों को नया दोस्त भी मिलता है। ओके, सो इट इज अ वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। ये हम सभी के लिए बहुत एक्साइटिंग टाइम होता है। व्हेन वी गो टू न्यू सेशन, वी मीट न्यू फ्रेंड्स, वी मीट न्यू टीचर्स, we use new diaries, new copies, new books, new lessons we get to learn। Okay, so I hope you have understood this part, what is new session mean. Now let us read about how students from around the country reach their school। स्कूल तो सिर्फ एक जगह पे नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह स्कूल है, और हर जगह स्कूल में सभी बच्चे स्कूल के पास तो नहीं रहते हैं, कोई बहुत दूर, कोई बहुत करीब, कोई थोड़े दूर, कोई थोड़े सामने। तो सभी बच्चे अपने अपने स्कूल कैसे पहुंचते हैं, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट। ओके, सो स्टूडेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, प्लीज पे अटेंशन इन द बुक। जो भी मैं रीड कर रहा हूँ, तुम्हारे स्कूल के बुक से रीड कर रहा हूँ, चैप्टर 13 से, गोइंग टू स्कूल। ये पेज मैं किस पेज में रीडिंग कर रहा हूँ? वेट, पेज 94। कैन यू सी दिस? वी आर पेज 94। सभी कोई पेज 94 खोल के है तो, और मैं यहाँ पर हूँ, देखो, स्टूडेंट्स in different parts of the world, I am hearing, I am reading this part। okay, so pay attention। many students live in remote area। remote area का मतलब क्या होता है? what does this word remote mean? remote का मतलब होता है बहुत दूर, किसी कोने में, मतलब जहाँ पे सुनसान इलाका हो, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिलना मुश्किल है, जहाँ पे नेटवर्क ठीक से नहीं पकड़ता है, बहुत सुनसान जगह में जहाँ पे कम लोग रहते हैं, गिने चुने लोग रहते हैं, और आजू बाजू एकदम सुनसान इलाका है, कोई भी नहीं रहता, बहुत ही अंदर में, उसे कहते हैं रिमोट एरिया। तो मोस्ट ऑफ यू ऑल्सो मस्ट बी लिविंग इन रिमोट एरियाज। आप लोग भी होगा कुछ कुछ जो लखीसराय से बहुत अंदर अंदर रहते होंगे आप लोग, जहाँ पे बहुत सुनसान इलाका होगा, बहुत कम लोग रहते होंगे, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कभी कदार कट जाता होगा, नेटवर्क भी ठीक से नहीं पकड़ता होगा, तो दीज आर कॉल्ड रिमोट एरियाज। सो मैनी स्टूडेंट्स लिव इन रिमोट एरियाज वेयर द नियरेस्ट स्कूल इज एट अ ग्रेट डिस्टेंस। कुछ बच्चे बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं, जिसके लिए जो भी स्कूल होता है, जो सबसे करीबी स्कूल होता है,
वो उसके घर से बहुत दूर होता है. ओके, द नियरेस्ट स्कूल इज एट अ ग्रेट डिस्टेंस, सो दे मे लिव इन एरियाज विद डिफिकल्ट टेरेंस. तो कुछ कुछ बच्चे डिफिकल्ट टेरेंस मीन जैसे पहाड़ी इलाका, कुछ कुछ बच्चे हो सकता है बहुत पहाड़ी इलाके में हो, हैं, लाइक स्नो कवर्ड माउंटेन और फॉरेस्ट, कुछ जंगल इलाके में भी हो, विच में हैव अनफेवरेबल. अनफेवरेबल मतलब जो फेवरेबल नहीं है, मानी कि जो हमारे हिसाब से नहीं है, बहुत मुश्किल कंडीशन, उसे कहते हैं अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस. एंड लैक ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. और कुछ बच्चे इतने अंडर रिमोट एरिया में रहते हैं, टेरेंस इलाके में रहते हैं, कि उन लोगों को ट्रांसपोर्ट मिलना भी मुश्किल है. कोई गाड़ी नहीं मिलता, बैलगाड़ी तक नहीं मिलता उन लोगों को. सोचो वो लोग स्कूल कैसे आते होंगे. तो दीज आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ सम स्टूडेंट्स. योर्स आर वेरी लकी. आप सभी तो बहुत लकी हो, आप लोग के पास स्कूल आने का साधन है, स्कूल बस है. आप कोई कोई स्कूल के बहुत करीब है. कुछ बच्चे तो हमारे स्कूल के वो सूर्यागढ़ में रहते हैं, सूर्यागढ़ मार्केट के पास. हार्डली इट इज 5 मिनट्स. साइकिल चला के आएंगे या वॉकिंग करके भी आएंगे तो स्कूल पहुंच जाएंगे. लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं, मैं जानता हूँ, बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं, सूर्यागढ़ के, जो बहुत दूर से आते हैं. क्रिएटिव माइंड. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स. माने दे कम टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार. ओके, अब कम टू बैम्बू ब्रिजेस. बैम्बू ब्रिजेस देखो, अगर तुम इस पिक्चर को देखोगे, सी दिस पिक्चर वेयर आई एम टिकिंग, सी दिस पिक्चर. अगर इस पिक्चर को आप देखेंगे, देखो जो मैं सर्कल किया इस पिक्चर को, कैन यू सी दिस पिक्चर. स्टूडेंट, देखो क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स यूजिंग बैम्बू ब्रिजेस टू रीच स्कूल. इससे कहते हैं बैम्बू ब्रिज. कैन यू सी दिस बैम्बू ब्रिज. पानी है, पानी नीचे से जा रहा है, आप क्रॉस करने के लिए बैम्बू का ब्रिज बना होता है, ताकि लोग एक किनारे से दूसरे किनारे जा पाए. तो आई होप आप लोगों में से भी कोई ऐसा भी होगा जो ऐसे बैम्बू ब्रिज को पार करके स्कूल आता होगा. ओके, सो लेट्स रीड बैम्बू ब्रिजेस. देयर आर प्लेसेस इन हिली रीजन. हिली रीजन में ऐसे भी कुछ जगह होते हैं वेयर अ स्कूल इज लोकेटेड अक्रॉस अ रिवर ऑन अ हिल, कि स्कूल बहुत दूर में है, जिसे पहुंचने के लिए कोई नदी या नाला पार करना होता है. तो उसके ऊपर ये बैम्बू ब्रिजेस बनाया जाता है, ताकि लोग और स्कूल जाने वाले बच्चे इस ब्रिज को पार करके, इस ब्रिज को चलकर इस नदी को पार कर पाए, इस ब्रिज के सहारे, बैम्बू ब्रिजेस. सम ऑफ दिस रीजन्स आल्सो गेट हेवी रेनफॉल, सो स्टूडेंट्स हैव टू यूज नैरो बैम्बू ब्रिजेस. यही देखो, ये नैरो बैम्बू ब्रिजेस टू रीच देयर स्कूल. तो देखा व्हाट आर बैम्बू ब्रिजेस. तो स्टूडेंट्स जो बहुत दूर रहते हैं, वो लोग बहुत कष्ट लेकर, बहुत तकलीफ लेकर स्कूल पहुंचते हैं. ओके, यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर बैम्बू ब्रिजेस. इस पिक्चर में नजर आ रहा है ना, बैम्बू ब्रिज आप लोग देख सक रहे हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर द बैम्बू ब्रिजेस आर हियर. नाउ कम टू ट्रॉलीज. अब ट्रॉलीज में आते हैं. ट्रॉलीज क्या है. ट्रॉलीज जो है, जो पहाड़ी इलाका में क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान क्रॉस करने के लिए देखो कि केबल ब्रिज बना हुआ होता है, आई मीन केबल का तार लगा हुआ होता है, और उस पर बक्सा का तरह होता है जो झूल कर उस केबल तार के सहारे एक छोर से दूसरे छोर वो पार होता है. तो इसी ट्रॉलीज पे लोग भी बैठ जाते हैं, और वो एक कोने से दूसरे कोने ब्रिज का, पर्वत इलाके का पार हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रॉलीज. In mountain areas, come to the book. In mountain regions, schools are sometimes situated on top of hills. कभी कभी क्या होता है माउंटेन रीजन में, टॉप ऑफ हिल्स. स्कूल क्या होता है, कहाँ पे होता है, पहाड़ के ऊपर होता है. तो इन सच केसेस, ऐसे केसेस में क्या करते हैं, स्टूडेंट्स रीच देयर स्कूल इन ट्रॉलीज विच कैरी देम फ्रॉम वन हिल टू दी अदर. आप लोगों ने ट्रॉली देखा होगा, जो
एक जगह बक्सा का तरह बना हुआ होता है, ऊपर केबल तार लगा हुआ होता है, उस केबल तार से लटकता हुआ रहता है वो ट्रॉली, और वो ट्रॉली घसकते हुए पूरा एक कोने से दूसरे कोने जा सकते हैं, और एक पहाड़ी इलाके से दूसरे पहाड़ी इलाके जा सकते हैं इस ट्रॉली के मदद से। ओके, तो ये तो मैंने डिस्कस किया। जो बच्चे रिमोट एरिया में रहते हैं वो लोग बहुत मुश्किल से आते हैं, कुछ बच्चे बैम्बू ब्रिजेस क्रॉस करके आते हैं, और पहाड़ी इलाके में रहने वाले बच्चे ट्रॉलीज करके अपने स्कूल आते हैं। These I have explained you how the children come who live in remote areas, who live in a area who have to reach school by crossing a canal or a river. They use bamboo bridges, and the students living in hilly areas, and suppose the school is situated at the top of the hill, so they reach their school by passing through the trolleys. By using the trolleys they use. And what about those students who use around near the school? जो बच्चे स्कूल के आजू बाजू में रहते हैं वो लोग स्कूल कैसे पहुंचते हैं? देखो, यूजिंग लोकल ट्रांसपोर्ट। These students, they come to school by using local transport. So some of us travel in local transport like bus, auto rickshaw. We use bus and auto rickshaw to reach school. Okay. Now, in the backwaters of Kerala, students use small boats to reach school. केरला में अगर आप जाएंगे तो वहाँ बैक वाटर बहुत होते हैं। बैक वाटर का मतलब समझते हैं? वो एक स्मॉल सा नहर जैसा रहता है, वो लंबा लंबा नदी जैसा रहता है रास्ता जिसपे पानी फंसता हुआ रहता है। तो वहाँ केरला में जो बैक वाटर्स होते हैं, जो नहर जैसा एक लंबा लंबा पानी का जो जगह होता है, उस पे स्टूडेंट्स कैसे आते हैं? स्टूडेंट यूज स्मॉल बोट, छोटा छोटा नौका होता है, तो उस नौके से में बैठकर केरला में स्टूडेंट्स अपने स्कूल आते हैं। इन द बैकवाटर्स ऑफ केरला, यू कैन सी वेयर आई एम अंडरलाइन, सी स्टूडेंट यूज स्मॉल बोट्स टू रीच स्कूल। ओके, स्टूडेंट्स बैक वाटर में, जो केरला में है बैक वाटर्स, स्टूडेंट स्मॉल बोट्स में बैठ कर ही अपने स्कूल पढ़ने आते हैं केरला में। ओके, आप देखो मैं यहीं रुकता हूँ, आई एम स्टॉपिंग हियर। डेट दे दो तुम लोग आज का डेट है 2 नवंबर, 2 नवंबर 2020। यहाँ डेट लिख दो। आई विल स्टॉप हियर, मैं यहाँ पे रुका हूँ। देखो मैंने जहाँ डेट लिखा हूँ, आई विल स्टॉप हियर। फ्रॉम टुमारो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। कल मैं डिस्कस यहाँ से करूँगा इन सम पार्ट्स से। ओके, कल या कभी भी तुम्हारा नेक्स्ट क्लास हो तो इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस फ्रॉम हियर इन सम पार्ट से। ओके, ऑफ राजस्थान से। अभी यहाँ डेट दे दो। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, and next I am going to teach in my next class. Okay.